آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سیریل کلر کی موویز میں اور بہت سارے ڈراماز میں یا کہیں سٹوریز میں آپ نے سیریل کلر کے بارے میں تو پڑھا ہی ہوگا، لیکن ایک ایسا سیریل کلر جو پاکستان میں لاہور جیسے شہر میں ایگزسٹ کرتا رہا ہے، کیا آپ کو اس بارے میں پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ وہ سیریل کلر جس کا نام تھا جاوید اقبال، وہ لاہور کے علاقے میں تھا اور اس نے 100 بچوں کا کیسے قتل کیا، کیسے ان کے ساتھ زیادتی کی اور کیسے ان کی ڈیڈ باڈیز کو وہ ایسڈ کے ڈرمز کے اندر ڈیزولو کر دیتا تھا، اور کیسے اس نے اپنا یہ سارا جو بھی اس نے جرم کیا اس کا کنفیشن کیا، اور اس نے کیا بتایا کہ اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اور اس کی زندگی کیسے رہی، اور ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں آپ کو ضرور اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن آپ نے جڑے رہنا ہے میری ویڈیو کے اینڈ تک۔ جاوید اقبال ایک سیریل کلر تھا جس نے 100 بچوں کو زیادتی کرنے کے بعد ان کو قتل کرتا تھا اور پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ایسڈ کے ڈرمز کے اندر ڈیزولو کر دیتا تھا تاکہ ان کی ڈیڈ باڈیز کے کوئی بھی نشان باقی نہ رہے، کوئی بھی ثبوت باقی نہ رہے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا تھا، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ لاہور میں پولیس جو ہے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے کہ میل باکس چیک کیا جاتا ہے جس میں ایک میل موصول ہوتی ہے، اور وہ جو پولیس کا کانسٹیبل یا جو بھی اس میل کو پڑھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس میل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ پڑھنے والے کے لیے ایک ایسی بات ہوتی ہے جو پہلے اس نے نہ کبھی سنی ہوگی نہ ہی کبھی سوچی ہوگی، اور وہ اس کے امیجنیشن سے بھی کہیں بہت دور دور تک تعلق نہیں رکھتی ہوگی۔ وہ بات یہ تھی کہ جاوید نے ایک میل کی تھی پولیس کو جس میں اس نے یہ کنفیشن کیا کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے، اور اس نے لکھا کہ اس کے 100 بچوں کو قتل کرنے کا اس کا مشن تھا، اور اس نے یہ سوچا تھا اور اس بارے میں اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ 100 بچوں کو قتل کرے گا اور پھر 100 ماؤں کو رلائے گا۔ لیکن ایسا کیوں تھا کہ وہ 100 ماؤں کو رلانا چاہتا تھا اور 100 بچوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور قتل کرنے سے پہلے وہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، اور اس نے وہ ڈرمز میں سارے بچوں کو کیوں ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈیزولو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی وہ زیادتی کرنے کے بعد بچوں کا قتل کرتا تھا تو وہ بچوں کی فوٹوز لے لیا کرتا تھا اور ان فوٹوز کو وہ سنبھال لیا کرتا تھا، ان بچوں کے جو کپڑے ہوتے تھے اور جو جوتے ہوتے تھے وہ بھی ان کو سنبھال لیا کرتا تھا تاکہ کل کو جب وہ کنفیشن کرے تو وہ اس کو شناخت کی جا سکے بچوں کی، اور وہ اس کو ثبوت کے طور پر دکھا سکے۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا، اور بچوں کی ڈیڈ باڈیز کو تو وہ ڈیزولو کر دیتا تھا، پھر اس نے ثبوت کیوں رکھے اور وہ کیوں بچوں کے کپڑے رکھتا تھا، وہ اس نے سارا کچھ اس میل کے اندر جو ہے پولیس کے سامنے کنفیشن کرنے کی کوشش کی۔ جاوید نے اس میل میں اپنا جو ایڈریس ہے وہ بھی مینشن کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی پولیس کے علم میں یہ بات آئی تو پولیس اس دیے گئے ایڈریس پر جب پہنچی تو ایک دستک دینے پر ایک آدمی باہر آیا، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں، وہ خود جاوید اقبال تھا جو کہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ تو جیسے اس نے پولیس کو دیکھا تو اس نے اپنی کنپٹی پہ پسٹل رکھ لیا اور اس نے پولیس کو دھمکی دی کہ اگر وہ وہاں سے نہیں جائیں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا۔ تو پولیس کو لگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، یا تو کوئی مذاق ہے یا کوئی یہ پبلسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے یا یہ انسان کو ذہنی مسئلہ ہوگا کوئی، تو پولیس بنا کسی چیکنگ کے، بنا اندر داخل ہوئے، بنا اس کے گھر کی تلاشی لیے وہ ویسے ہی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جاوید جو ہے وہ اپنے واپس گھر میں چلا جاتا ہے۔ 22 نومبر 1999 کو جنگ اخبار جو کہ جیو نیوز کی طرف سے پہلے جنگ اخبار ہوا کرتا تھا جو کہ ابھی تک ہے، اس کے باہر ایک پارسل موصول ہوتا ہے، اور وہ پارسل اس ٹائم کے کرائم رپورٹر جمیل چشتی صاحب کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی اس پارسل کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک ڈائری ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ پکچرز ہوتی ہیں، اور وہ چونکہ کرائم رپورٹر تھے اور وہ فوراً ہی خبر کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس ڈائری کو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو اس میں جاوید اقبال نے اپنا سارا جو بھی اس نے جرم کیا تھا اس کا پورا کنفیشن اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اس کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی، اور پھر ان تفصیلات میں کیا تھا جو اس نے پولیس کو بات بتائی تھی وہی بات اس نے اس ڈائری کے اندر لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ باتیں کچھ زیادہ ہی ڈیٹیلز اور کچھ زیادہ ہی تفصیلات کے ساتھ اس نے لکھی، کیونکہ یہ ایک ڈائری کے اندر لکھی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے جیسے وہ بچوں کو مارتا تھا، جس جس بچے کو مارتا تھا، کیا کیا کرتا تھا اس بچے کے ساتھ، اس نے وہ تمام تر اس ڈائری کے اندر ساتھ ہی
साथ सब कुछ लिख दिया और वो डायरी उसने जंग अखबार को पार्सल कर दी। और उसमें मौजूद ख़त भी था जो कि जावेद की तरफ से लिखा गया था और कुछ पिक्चर्स थी, तो जावेद ने ख़त में लिखा कि मैंने 100 बच्चों को मारा और ये मेरा एक मिशन था जो मैंने ख़ास मकसद के तहत किया था, और उन बच्चों की तस्वीर जो हैं वो भी मैंने इस पार्सल के अंदर डाल दी हैं और वो आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मेरा जो मिशन था 100 बच्चों को मारने का वो क्यों था, वो भी आगे जाकर उस पर भी बात करेंगे। उस पूरी जो ख़त था और उस डायरी के अंदर उन बच्चों की तमाम तर डिटेल्स मौजूद थी। और इससे भी जो भयानक बात थी वो ये कि जावेद कहता है कि मैंने आपको, यानी कि किसी भी खबर रसां इदारे को, ये पार्सल इसलिए भेजा है ताकि आप ये खबर अपने अखबार में लगाएं और दुनिया को बताएं, और जो जो इसको सुने या जो जो इसको पढ़े उसकी रूह कांप जाए कि उसने ये क्या किया है, और ये बच्चों के साथ जो भी सलूक हुआ है उस पर 100 माएँ मैं उनको रुलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी ऐसे ही रोएँ जैसा कि मेरी माँ रोई थी। उसकी माँ क्यों रोई थी, इस पर भी बात करते हैं। जंग अखबार के क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती साहब इस खबर की गहराई तक पहुँचने के लिए जैसे ही उसके दिए गए एड्रेस के ऊपर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि घर को तो लॉक लगा हुआ है, लेकिन वो जैसे ही दीवार के ज़रिए अंदर जाते हैं, तो अंदर जो घर के अंदर का मंजर होता है वो इतना भयानक होता है कि वो शायद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे को वही बता सकते थे कि घर के अंदर ड्रम्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर एसिड है, और एसिड के अंदर बच्चों के जो डेड बॉडीज वो डिसॉल्व करता था, और वहां पर इस कदर स्मेल होती है डेड बॉडीज, और इस तरह की आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जहाँ पर 100 बच्चों की डेड बॉडीज को डिसॉल्व किया जाता हो, तो वहां पर क्या किस किस्म का माहौल हो सकता है। वहां पर बच्चों के कपड़े बिखरे हुए थे, बच्चों के जूते पड़े हुए थे, और कुछ दीवारों के ऊपर उन बच्चों की डिटेल्स लिखी हुई थी कि कौन सा बच्चा कहाँ से लाया गया, और जितनी भी डिटेल्स वो हासिल कर सकता था उस किस बच्चे को किस तरह से मारा गया, वो सब कुछ उनके ऊपर दर्ज था। जावेद इकबाल का लिखना था कि ये सारी जो डिटेल्स मैंने बच्चों के हवाले से महफूज की हैं, या मैंने जो लिखी हैं, या मैंने जो पिक्चर्स रखी हुई हैं, जितनी भी कपड़े वगैरह, ये सिर्फ मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि जब मैं ये सब चीज़ें दुनिया के सामने लाऊँ तो कोई ये ना कहे कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ या फिर ये कोई हकीकत नहीं है, बल्कि जो ऑफ़िसर्स हों, जो भी मुतल्लिका ऑफ़िसर्स उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों या उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हों, बच्चों की शनाख्त करना चाहते हों, तो उनको पता हो कि ये कौन-सा बच्चा कैसे किस तरह से उसको कत्ल किया गया और उसके साथ क्या-क्या हुआ। ये सारी तफ़सीलात मैं पुलिस के लिए रख रहा हूँ ताकि वो उनकी वालिदैन को बता सकें और दुनिया को बता सकें, ताकि सुनने वालों की रूह काँप जाए। जावेद उस टाइम का सबसे वो जो कहते हैं ना मोस्ट वांटेड आदमी था, और वो भाग चुका था, पुलिस उसको ढूँढने में मसरूफ़ थी कि एक दिन वो जंग अखबार में खुद गया और उसने सरेंडर कर दिया, और उसने बताया कि उसको इन बच्चों को मारने पर कोई भी अफ़सोस या कोई भी पछतावा नहीं है। उसने कहा कि मैं दुनिया से नफ़रत करता हूँ और मैं पुलिस की नाइंसाफ़ी और पुलिस में जो भी निज़ाम है, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, और ये सब कहने के बाद उसने कहा मैं तो इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। और ये सब बातें जब वो सहाफ़ियों को बता रहा था, तो सहाफ़ियों ने मुतल्लिका इदारों को उसके बारे में इत्तला कर दी ताकि वो आएँ और वो उसको पकड़ सकें। अब उसको पुलिस के निज़ाम से क्यों नफ़रत थी और उसने ये सब कुछ क्यों कहा? एक दफ़ा जब जावेद ने एक बच्चे को जो कि आई थिंक 18-20 साल का था, उसको ज़्यादती के लिए अपने ज़्यादती के मकसद से अपने घर लेकर आया, उसको खाना-शाना खिलाया, और जैसे उसके साथ ज़्यादती की तो बच्चा बहुत गुस्से में था, तो जावेद सो गया ज़्यादती वग़ैरह करके उसके साथ, तो उस बच्चे ने जावेद के सर पर पिस्टल मारी, और जिससे जावेद बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। और फिर उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा, और फिर उसको पुलिस लेकर गई। जब पुलिस उसको लेकर गई तो पुलिस ने सज़ा के तौर पर उसको 100 कोड़े मारे, और ये वो टाइम था जब उसकी उसकी फैमिली ने उससे बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया था। लेकिन जावेद का कहना है कि उस वक़्त उसकी माँ बहुत रोई, और वो इसी दौरान उसकी माँ की डेथ हो गई, और क्योंकि उसने अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखा जिससे उसको तकलीफ़ हुई, तो उसने ये सोचा कि वो भी 100 माँओं को रुलाएगा और 100 बच्चों के साथ ज़्यादती करेगा और उनको मार देगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग तब के लोग जिन्होंने जावेद से बात की या इस पूरे वाक़ये में वो बहुत ज़्यादा
इन्वॉल्व्ड रहे। उनका कहना है कि जावेद एक नफ्सियाती आदमी था, जो कि शुरू से ही उसकी फैमिली का कहना है कि जब जावेद छोटा होता था तो उसने सारे घर वालों को रात के टाइम पे खड़ा कर देना होता था, और वो कहता था कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, या फिर उसको अगर कुछ चीज़ चाहिए होती थी तो वो किसी भी तरह जिद करता था, कुछ भी करता था, वो उसको लेकर रहते थे। उसकी फैमिली का कहना है कि जावेद की एक बार नहीं, दो बार शादी की गई, लेकिन जावेद को क्योंकि बच्चों की तरफ अट्रैक्शन थी, वो एक पीडोफाइल था, वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होता था सेक्सुअली, तो वो अपनी शादी को भी कंटिन्यू नहीं कर सका। तो उसके घर वालों ने उसको लोहे का एक कोई बिजनेस बना के दिया। अब वो उस बिजनेस में क्या करता था, उस बिजनेस में वो बड़े मतलब आदमियों को रखने की बजाय वो बच्चों को रखता था। एक तो बच्चों को पैसे कम देने पड़ते थे, दूसरा वो उन बच्चों के साथ ज्यादती भी कर सकता था। लेकिन जब इसमें वो ज़्यादा आगे नहीं जा सका और उसको लगा कि वो बच्चों के साथ उस तरह से ज़्यादती नहीं कर पा रहा और उसको नुकसान भी हो रहा है काम में, तो उसने वो काम ख़त्म कर दिया। उसके ज़हन में एक ऐसा शैतानी ख़्याल आया, और वो ये था कि उन टाइम्स में 2000 की बात है, 1999 और 2000 की बात है, जब कोई मोबाइल्स और टेलीविज़न इतने कोई आम नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स खेलते थे। उसके लिए बाकायदा दुकानें बनी हुई होती थी, शॉप्स बनी हुई थी, जहाँ पर वीडियो गेम्स लगाई हुई होती थी, और बच्चे वहाँ पर कुछ चंद पैसे देते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। तो जावेद के ज़हन में ये शैतानी ख़्याल आया कि क्यों ना एक वीडियो गेम्स वाली शॉप खोलूँ जहाँ पर बच्चे आएँ। तो उसने आगे बच्चों को कैसे घेरता था, उसने पूरी वो एक प्लानिंग के साथ वो वीडियो गेम्स वाली शॉप ओपन की। अब जैसे ही वहाँ पर बच्चे आते थे, तो जावेद क्या करता था, कुछ पैसे ज़मीन पर फेंकता था और फिर बच्चों पर इल्ज़ाम लगाता था कि ये बच्चे, किसी भी बच्चे को बुला के लाइन में खड़ा करके वो उनसे पूछता था कि किसने पैसे उठाए हैं, मैंने यहाँ पर पैसे फेंके थे। तो वो अलग-अलग ले जाकर जब बच्चों से पूछने की कोशिश करता, तो वो उनके साथ ऐसी हरकतें करता था जो कि बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के साथ ज़्यादती करने के लिए। लेकिन जब बच्चों ने ये चीज़ें महसूस की, तो उनके वालिदैन उनको वीडियो गेम्स वग़ैरह जो है वो खेलने से मना कर दिया। तो ये इस सब के बाद जैसे ही बच्चों के वहाँ पर आना बंद हुआ, तो जावेद ने अपनी वो वीडियो गेम्स की जो शॉप थी उसको भी क्लोज़ कर दिया। फिर जावेद जो है वो लाहौर में शिफ्ट हो गया और वो एक अलग घर में रहना शुरू हो गया, जिसका उसने एड्रेस पुलिस और अखबार को भी भेजा था। अब क्या हुआ कि जब जावेद लाहौर में शिफ्ट हुआ तो उसके लिए बहुत ईज़ी हो गया। वो दाता दरबार पर बच्चे जो बिल्कुल लावारिस होते हैं या घर से भागे हुए होते हैं या गरीब बच्चे वहाँ खाने के लिए आते हैं, वो उनको बहला-फुसला कर अपने घर ले आता, उनको उनकी मर्ज़ी के खाने खिलाता या उनकी मर्ज़ी की चीज़ें दिलवाता, फिर उनके साथ थोड़ी देर खेलता और फिर उनके साथ ज़्यादती करता। और ज़्यादती करने के बाद जब बच्चा बैठा होता तो उसने एक चेन बना के रखी हुई थी, वो उसके गले में डालता और वो उसको वहीं पर मार देता, और जब वो बच्चे को मार देता तो सिर्फ यही नहीं, वो फिर उस बच्चे की पिक्चर्स लेता और वो उन पिक्चर्स को संभाल के रखता, और फिर बच्चे की बॉडी के टुकड़े करने के बाद उनको, उसके पास एसिड के ड्रम्स मौजूद थे और वो उन ड्रम्स के अंदर उस बच्चे की वो सारे जो डेड बॉडी के टुकड़े हुआ करते थे वो उसके अंदर डिसॉल्व कर देता, ताकि डेड बॉडी का जो एक ना स्मेल आए और वो एक नामो-निशान ही ख़त्म हो जाए। इसी तरह फिर वो बच्चों के साथ बाहर जाता, और जो गरीब बच्चे फिर रहे होते थे, जो लावारिस होते थे, बस स्टेशंस वग़ैरह, ट्रेन स्टेशंस, कहीं पर भी जहाँ पर भी उसको बच्चे मिलते, वो ईज़िली टारगेट करना शुरू हो गया। जब उसने 100 बच्चों के साथ यही किया, तो उसके बाद उसने अपना कन्फेशन जो है वो पुलिस को भेजा, और जब पुलिस आई तो उसने ना जाने क्यों उस टाइम पर अपने आप को बचा लिया, और फिर उसके बाद उसने एक जंग अखबार में खत लिख दिया, डायरी भेज दी, पिक्चर्स भेज दी। ये सब जो है ये जावेद की एक पूरी ज़िंदगी और उसमें उसने जो बच्चों के साथ किया उसकी एक डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई। थोड़ा थोड़ा बच्चों ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਭਰਾ ਯਾਰ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਦੇ ਜਾਣਾ तो शहर तो
और जावेद को पुलिस पकड़ के ले गई और सज़ा के तौर पे जावेद को 100 कोड़े मारे गए। इस दौरान काफ़ी सारी जो नेशनल इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, बात कोर्ट तक पहुँच गई और जब बात कोर्ट तक पहुँची तो उस दौरान कोर्ट के बाहर इतना ज़्यादा लोगों का प्रोटेस्ट होता था, बेचारे जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे ज़्यादती कर होने के बाद कत्ल कर दिए गए थे जावेद के हाथों, उनके उनके वालिदैन और उसके अलावा जो दूसरे वालिदैन थे वो वहाँ पर एहतजाज करते कि उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इस वजह से जज के ऊपर और इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया और ये वो टाइम था जब लाहौर की सड़कें बिल्कुल वीरान हो गई थी, जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते थे, खेलने नहीं भेजते थे, कहीं अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे और एक अजीब-सी दहशत फैल गई थी और इस दौरान जब जावेद को सज़ा हुई तो सज़ा में जो सज़ा जावेद को सुनाई गई वो कुछ इस तरह से थी कि जावेद को मीनार पाकिस्तान ले जाया जाए, वहाँ पर जावेद को उसी जिस चेन के साथ वो बच्चों को मारता था उस चेन के साथ इसको मारा जाए, फिर इसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएँ और फिर उसी तरह से एसिड के अंदर उसको डिज़ोल्व किया जाए जैसा कि वो बच्चों के साथ करता था। इस सब के ऊपर बहुत सारी एनजीओज़ और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि ये बहुत गैर इंसानी सलूक है, ये नहीं होना चाहिए जावेद के साथ। बहरहाल जावेद को जेल हो गई, वो जेल में रहना शुरू हो गया। एक रात जावेद एक रात ऐसी आई जब अगले दिन जावेद और उसका जो दोस्त है जो उसके साथ हेल्प कर रहे थे, जो उसको फैसिलिटेट कर रहे थे 2-3 दोस्त वो भी उसके साथ थे, उनकी डेड बॉडीज़ मिली और आज तक ये मामला सुलझ नहीं सका कि आया जावेद खुद ये काम करता था या जावेद को फँसाया गया और कहते हैं कि जिस रात जावेद ने खुदकुशी की, उस रात जो जेल के सारे कैमराज़ हैं, उस टाइम के दौरान वो भी बंद हो गए, गार्ड्स जो हैं वो सो गए। अब कु ये सारी जो सिचुएशन है, ये तो कुछ और बताती है, लेकिन मामला क्या है, ये आज तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल सके। तो ये तो थी जावेद की कहानी जो कि एक सच्ची बात है और ये कोई मूवी या किसी कहानी या किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बल्कि ये 1999 और 2000 में ये चीज़ हुई है और ये लाहौर शहर में हुई है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अल्लाह हाफ़िज़।